मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। इस टीम के अरकान ने मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया और रियासत में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत जारी की। कमीशन ने इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मरकजी ओहदेदारों ने रियासती मिशनरी की जानिब से रियासत में इंतखाबात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया ताकि साफ शफाफ असम्बली इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इंतखाबात के करीब आते ही सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हो गई हैं। घर घर इंतखाबी मुहिम के लिए मजदूरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। कारकुनों के घर पहुंचने में मुश्किल पर मजदूरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। तशहीरी मुहिम इन मजदूरों के ज़रिए चलाई जा रही है, जिसके लिए उन्हें रकम दी जा रही है, जिसके पेश नज़र शहर में मजदूरों की कमी हो गई है और उनकी तलब में इजाफा हो गया है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियों और सनतनगर के BRS उम्मीदवार थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अपोजिशन नाकामी के खौफ से कत्ल की सियासत कर रही है। मेदक के रुकन पार्लियामेंट कोता प्रभाकर रेड्डी पर किए गए हमले की तमाम को मजम्मत करनी चाहिए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अब तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने अमीरपेट डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఏదైతే ఇక్కడ బాపు నగర్ ఉన్నదో ఈ బాపు నగర్లో చిన్న గల్లీలు ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ సౌకర్యాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండే గతంలో. ఇప్పుడు డ్రైనేజ్ కానీ వాటర్ లైన్స్ కానీ స్టాప్ వాటర్తో పాటు అన్ని సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తున్నాం. మీరు కూడా చూశారు, వర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. కాబట్టి ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. కాబట్టి మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇప్పటి వరకు 50 ఏళ్ళ నుంచి జరిగినటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినాం. నీకు ఇండోర్ స్టేడియం కావచ్చు, అదేవిధంగా వాటర్ రిజర్వాయర్లు కావచ్చు, వైకుంఠ ధామాలు కావచ్చు, రోడ్డు కనెక్టివిటీ కావచ్చు, మరి LED లైటింగ్, ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి 50 బెడెడ్ హాస్పిటల్ కూడా కట్టించినాం. బస్తీ దవాఖానాలు కూడా వచ్చినాయి. ప్రజల సౌకర్యార్థం ఏమేమి కార్యక్రమాలు జరగాలో అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. दुबा के BRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी पर किए गए हमले पर नामपल्ली RDO से गोशामेल BRS कायदीन ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हमले के लिए जिम्मेदार है। रियासत में पुरअमन इंतखाबात के लिए इस तरह के वाकयात के आयादे को रोकने की जरूरत है। మా మీదట ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి దుబ్బట ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ మీద జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ RDO హైదరాబాద్కి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి, సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని RDO గారికి చెప్పినాము. ఈ మొత్తం మ్యాటర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ దాకా పోవాలి, సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. తెలంగాణలో ఎలక్షన్ పీస్ఫుల్ జరగాలని ఎలక్షన్ కమిషనర్ సీరియస్ అందరి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఈరోజు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము. BRS उम्मीदवार कडियम श्रीहरि ने राकेश के मकान पहुंचकर उन्हें BRS में शामिल होने की दावत दी। राकेश ने पार्टी क़यादत से नाराजगी का इजहार करते हुए बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया है। वरंगल वेस्ट हल्के से टिकट न मिलने पर वो पार्टी क़यादत से नाराज हैं। इस सिलसिले में BRS के उम्मीदवार कडियम श्रीहरि उनके मकान पहुंचे और उन्हें BRS में शामिल होने की दावत दी। ఉద్యోగం చేస్తూ ఆ ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని ఇండియాకు వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చురుకైన పాత్ర పోషించి ఆ పార్టీ యొక్క పటిష్టతకు కృషి చేసిన హనుమకొండ వరంగల్ వెస్ట్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన టికెట్ ఆశించారు. ఆ అవకాశం వారికి రాలేదని
మనస్తాపం చెంది భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికార ప్రతినిధి పదవికి వారు రాజీనామా చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారిని కలిసి నేను నా సంఘీభావాన్ని తెలిపాను. అంతేకాకుండా ఒక మాట కూడా వారిని అడిగాను, మీరు మీలాంటి వాళ్ళు భారత రాష్ట్ర సమితిలోకి వస్తే బాగుంటుంది, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అందరం కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం, మీరు భారత రాష్ట్ర సమితిలోకి రావాలని చెప్పి నేను పార్టీ పరంగా వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారు ఆలోచించుకొని చెప్తామని అన్నారు. महेश्वरम कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी और बडंगपेट मेयर नरसिम्हा रेड्डी के मकान की आईटी के अहदेदारों ने तलाशी ली। तुकुगुड़ा और अकबरबाग में लक्ष्मण रेड्डी के फार्म हाउस की भी तलाशी ली गई। आईटी हुकाम ने बेक वक्त बडंगपेट, नारसिंगी, बंजारा हिल्स में धावे किए। सुबह 5 बजे से आईटी हुकाम ने बालापुर में कांग्रेस लीडर नरसिम्हा रेड्डी के मकान की तलाशी ली। तलाशी के वक्त नरसिम्हा रेड्डी और उनके शौहर घर पर नहीं थे। आईटी के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान उनकी बेटी के सेलफोन को भी अपने कब्जे में ले लिया। मेडीगड्ढा बैरेज की करीब कशीदगी देखी गई। हजारों कांग्रेस के कायदीन और कारकुन मेडीगड्ढा बैरेज डैम के सुतूनों का मुआयना करने के लिए जमा हुए, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। राहुल गांधी की आमद के साथ ही बड़ी तादाद में ये कायदीन बैरेज देखने के लिए जमा हो गए, जिन्होंने बैरेज की सिमत दौड़ना शुरू कर दिया। इस मौके पर सूरत हाल को काबू करने के लिए पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की पुलिस से बहस व तकरार भी हो गई। कांग्रेस कायद अंजन कुमार यादव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने इसे इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। मुशीराबाद आरटीसी चौराहे पर कालेश्वरम तमसीली एटीएम लगाया गया। इस एटीएम के जरिए अनोखा एहतजाज किया गया। उन्होंने रियासत में बेकायदगियों का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस को कामयाब बनाया जाए। ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఈ కాళేశ్వరం దొంగలను బయటికి పంపడానికి ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, అన్ని కూడా కక్కిస్తాం. వీళ్ళు ఎన్ని లూటీ చేసిరో మొన్ననే చూసిరు. మొన్న ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేనే వాళ్ళ కులస్తుడు మైనంపాటి హనుమంతరావు ఏమన్నాడు, హరీష్ రావు నీకు 1,00,000 కోట్లతో సంపాదించిన అన్నడా? సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ కులస్తుడు, ఆయన ఎమ్మెల్యే. ఆయన చెప్పిండంటే ఒక హరీష్ రావు దగ్గర 1,00,000 కోట్లు ఉంటే వాళ్ళ మహమ్మద్ కేటీఆర్ దగ్గర 2 ఉండాలి, వాళ్ళ మామ కేసీఆర్ దగ్గర 2 ఉండాలి. ఈ దేశాన్ని లూటీ చేసిరు. వాళ్ళ లూటీ ప్రభుత్వం 30% కమిషన్ ప్రభుత్వం, దళిత బంధువుల కమిషన్ 30% కమిషన్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు సమయం అసన్నమైంది. వాళ్ళు तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने आरटीसी चौराहे के करीब तमसीली कालेश्वरम एटीएम लगाते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और इस बदउनवानी की तशहीर करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की अवामी दौलत को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए लूटा गया है। आदिलाबाद कांग्रेस में नाराजगी पाई जाती है। आदिलाबाद से एनआरआई कंदी श्रीनिवास को टिकट दिया गया, जो कबल अज़ीम बीजेपी में थे। पार्टी ने टिकट के लिए 3 सीनियर कायदीन के दावे को मुस्तरद कर दिया। 3 कायदीन सुजाता, संजीव रेड्डी और साजिद खान ने श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ किसी एक को बागी उम्मीदवार के तौर पर ठहराने का फैसला किया है। बीएसपी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने सिलसिला हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए बीएसपी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मुहिम के दौरान अवाम का बेहतर रद्द अमल सामने आया है।
राजेंद्र नगर में उजीदा प्रोजेक्ट के नाम पर तामीर करदा विला के करीब कशीदगी देखी गई। मुतासरीन ने इस सिलसिले में एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के रिश्तेदार होने का दावा करते हुए प्रवीण कुमार ने बुधवेल में करोड़ों रुपए की अराजियात पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि कई मरतबा आला अहदेदारों से इस सिलसिले में शिकायत की गई, ताहम प्रवीण कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुराने शहर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस को 24,50,000 रुपए नकद रकम बरामद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार डिवीजन रुद्रा भास्कर ने बताया कि चारमीनार पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से हाई कोर्ट गेट नंबर 4 के करीब गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी जा रही थी। इस दौरान 2 अफराद मोहम्मद आजम साकिन जहानुमा, मोहम्मद फहीम साकिन चिंतलमेट किशनबाग गाड़ी में जा रहे थे। इनके पास से 24,50,000 रुपए की नकद रकम बरामद हुई। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि रकम जहीरुद्दीन नामी शख्स की, जो राघवेंद्र कॉलोनी रूबरू नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ताहम रकम से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश न करने पर इस रकम को जब्त कर लिया गया। आज जो है हम लोग व्हीकल चेकिंग कर रहे थे अलॉन्ग विद टास्क फोर्स टीम साउथ जोन, तो 2 फहीम और आजम बोल के 3:30 बजे गाड़ी पे जा रहे तो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हम लोग चेक कर रहे तो बैग में जो है 24,50,000 कैश था। उसके बारे में पूछे तो वो लोग शेख जहीरुद्दीन बोल के उन्होंने जो राघवेंद्र कॉलोनी NPA करने रहता उन्होंने उसका है बोल के बोले। उनको बुलाए तो उन्होंने सही डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करे, तो कहाँ से आया वो बोले तो वो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट है बोल रहा। उसके ऊपर हम लोग तहकीकात कर रहे, तो जो कैश सीज करे वो हम लोग अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कराएगा तो हम लोग IT वाले को सीज करके भिजा देंगे। 24,50,000। मजलिस के साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान ने कहा है कि मजलिस को मराठों को रिजर्वेशन देने पर कोई इतराज़ नहीं है, उसकी हिमायत मजलिस करती है, लेकिन साथ ही मुंबई हाई कोर्ट के मुताबिक मुस्लिम तबके को भी तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो बनाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत मराठों को रिजर्वेशन दे और मुस्लिम तबके को भी तालीम में 5% रिजर्वेशन फराहम करे। महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मराठा रिजर्वेशन को लेके धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाया, लीडर्स को बुलाया। हमको नहीं बुलाया, MIM को नहीं बुलाया। हमारे यहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 हमारे MLA, फिर भी हमको नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, हमने तो हमेशा से कहा है कि मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिले। ये कमेटी के रिपोर्ट्स है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, तमाम कमेटी के रिपोर्ट ये दर्शाते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 2014 के चुनाव के पहले जब ये चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जब सत्ता में थी, तो 14 के चुनाव के पहले जाते वक्त उन्होंने 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, मगर उसका कोई प्रॉपर कानून नहीं बनाया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। मैटर गया मुंबई उच्च न्यायालय में। मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए। सरकार की उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। देखिए, हमने तो विधानसभा में भी खड़े रहकर कहा कि मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिन मां बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़े ऑफिसर बने, IPS IAS ऑफिसर बने, दूसरे नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हमारा भी अरमान है। तो क्यों सरकार जो
हाईकोर्ट का आदेश है 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देने का, उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? मराठा भाइयों को भी रिजर्वेशन दीजिए, मुसलमानों का भी जो हाईकोर्ट ने किया ऑर्डर उसको भी रिजर्वेशन दीजिए। ये हमारी महाराष्ट्र की सरकार से मांग है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मेडीगड्डा बैरेज का मुआयना किया। इस मौके पर वो बजरिया हेलीकॉप्टर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लक्ष्मी बैरेज पहुंचे। बादशाह उन्होंने इस बैरेज का मुआयना किया। इस बैरेज के मुआयने के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वहां मौजूद थी। कबलजी उनको इस बैरेज के मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम कांग्रेस के मुकामी कायदीन की मुदाखलत के बाद राहुल गांधी को इस बैरेज के दौरे और तफसीली मुआयने की इजाज़त दे दी गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में आज हाजिर नहीं हुए। राय के मुताबिक केजरीवाल मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए रवाना हो गए। शराब स्कैम के सिलसिले में ईडी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी, ताहम आज वो मध्य प्रदेश रवाना हो गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।